So let's start. So first of all, thanks everybody for joining on this call from your busy schedule. So my name is Devanshu Bindish. I am the Vice President of Altport Experts. So Altport Experts is specialized. We aim these webinars to forecast the knowledge amongst our investor community. So today I have expert Mr. Vikas Ji. Vikas Ji is the founder of Altport Experts. Vikas Ji has 2 decades of experience working in the same industry. He has met Warren Buffett and Charlie Munger, so he understands very well how does the markets work. At the same time, today we have selected the topic that we will talk about budget, which got released 2 days back in 2026. So let's talk about budget today. And Vikas Ji, welcome to the show. All right. Thank you, Devanshu. Thank you for your kind introduction. I would like to correct one thing here. While I had a chance to attend Berkshire Hathaway's AGM and had a chance to listen to both the seasoned investors, Warren Buffett and Charlie Munger, but that doesn't mean that I know everything. So I'll try and share some data points. So let's come to the topic, which is budget. So uh, I'll share my screen with you without any further ado and take you through relevant points that I picked up from the budget. So can you see my screen? Is it visible? Yeah, can you see my screen, Devanshu ji? I can see your screen, sir. All right. Okay. So, देखिए इस बेसिकली कल का जो बजट हुआ उसमें काफी मिक्स्ड रिव्यूज आए while lot of people were expecting a lot from this budget, but मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि जो NDA now 3 which is the current government, whenever they present they try to focus on reforms and clearly not, I mean, they don't come out with populist budget all the time. They do it once in 4 years, 5 years time, closer to the election. Otherwise, they always focus on development and growth. So this time theme is very clear. I don't know how many of you noticed our Honorable Finance Minister Nirmala ji talked about manufacturing at least 7-8 times during her presentation while she was presenting the budget. So clearly the focus is more on manufacturing, SMEs, and employment. And clearly the focus is more towards defense infrastructure and the city developments. So let's come to the points, जो major जो points थे जो मैंने pick किए. So देखिए, year on year we've been targeting about, if you look at last year, we had a target of about 11 lakh crores. कैपेक्स, मतलब कैपेक्स प्रोजेक्ट पे हम 11 लाख, मतलब मोटा मोटी 1 लाख करोड़ हर महीने खर्चा करेंगे. सो लास्ट ईयर हम ये कर नहीं पाए थे, बट दिस ईयर 2024-25 में हमने ये टारगेट गवर्नमेंट ने पूरा नहीं कर पाया, बट दिस ईयर दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड गियर्ड अप. इनफैक्ट लेट मी टेल यू द टारगेट इज ऑलमोस्ट अचीव्ड 11 लाख करोड़ का, और अगले साल उन्होंने उसको मोटा मोटी 9% से रिवाइज किया है. So next year again they will have a target of 1 lakh crore. So इकोनॉमी क्या, दो जो जीडीपी होती है ना देवांशु जी, वो 2-3 तरीके से उसे बूस्ट मिलता है. एक होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या कैपेक्स आ रहा है, कैपेक्स लेड ग्रोथ बोलते हैं. प्राइवेट कंपनी से क्या कैपेक्स आ रहा है, प्राइवेट कंपनी बेस्ड कैपेक्स ग्रोथ बोलते हैं उसे. और दूसरा कंजम्पशन उससे जो होता है वो एक इंजन बन जाता है. और तीसरा जो एक जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है फिस्कल डेफिसिट पे, उसके बारे में हम आगे आएंगे. दूसरा उन्होंने बताया कि उन्होंने एफएम, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कॉरिडोर, रेल कॉरिडोर जो उन्होंने ओपन किया, जैसे बॉम्बे पुणे है, पुणे हैदराबाद है, हैदराबाद चेन्नई है. तो इसका सिलेक्शन कैसे हुआ, सबसे पहली बात तो ये, और ये क्यों किया गया. देखिए, किसी भी कंट्री में अगर आप लॉजिस्टिक कॉस्ट को जितना कम करने की कोशिश करेंगे उतना आपको जीडीपी में इजाफा मिलता है, जीडीपी प्रोडक्शन मिलता है. ये तो क्या होता है, वो कॉस्ट जो है वो ऐड हो जाता है प्रोडक्ट में, तो उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है. तो इनका जो कोशिश ये है कि ये जो कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं जिससे कि ये
कॉस्ट जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट वो कम हो जाए। तो इसकी हम्म। वजह से इन्होंने रेल कॉरिडोर 7 हाई स्पीड का बनाया अनाउंसमेंट किया और बहुत थॉटफुली सिलेक्शन भी किया इसमें। देखिए जैसे मुंबई पुणे एक हो गया, पुणे हैदराबाद हो गया। ये कैसे सिलेक्ट होता है? ये सिलेक्ट होता है विथ सम डेटा पॉइंट्स कि कौन से इसमें ज्यादा बिजी हो रहा है, डिमांड कहाँ पे ज्यादा आ रही है, कहाँ से सामान कहाँ पे भिजवाना है। इसमें आप देखेंगे कहीं भी आप इसमें बिहार वगैरह का नाम नहीं देख रहे हैं। मतलब ये बहुत थॉटफुली डेटा ड्रिवन बनाया गया है। इसके बाद में उन्होंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो बनाया बिटवीन दनकुनी एंड सूरत, उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा डिमांड है अभी इस समय पे। और उन्होंने बोला है कि दे वांट टू बेसिकली दे हैव अ प्लान टू ऑपरेशनलाइज 20 नेशनल वाटरवेज ओवर द नेक्स्ट 5 years and with absolutely clear focus on category tier 2 and tier 3 city as emerging growth hub। इसमें क्या है भाई, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में से आपने इंदौर एक अपकमिंग है, नागपुर एक अपकमिंग Yeah. सिटी। तो ये इस पे इसको ग्रोथ जो है emerging growth hubs बनाना है। तो स्टेट विल रिसीव 1.4 लाख करोड़ इन फाइनेंस कमीशन ग्रांट फॉर लोकल बॉडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे लोकल बॉडी में डिजास्टर मैनेजमेंट का भी कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो क्लियरली ये फोकस है उनका। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग से 8 लाख करोड़ 7.8 लाख करोड़ का टोटल डिफेंस में 2027 के लिए डाला। अभी ये सब कोई सुना नहीं होगा, हालांकि पिछले साल भी, इस साल भी टारगेट उन्होंने 6.81 लाख करोड़ किया था, लेकिन 1 लाख, मोटा मोटी 1 लाख करोड़ का उन्होंने बजट में इंक्रीज कर दिया है। सो मतलब एक समय पे 2017 में मुझे याद है 3-3.5 लाख करोड़ का बजट होता था डिफेंस का। आज वो मोटा मोटी 7.88 लाख करोड़ से मतलब डबल हो गया देवांशु जी। और इसका रीजन है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम 7th इकोनॉमी थे, 7th 8th लार्जेस्ट थे, 7th लार्जेस्ट थे, उस समय तक फाइन था। अब जैसे हम 5th में आ गए, अभी 4th आ गए, अब हमारे यहाँ से दुश्मन बढ़ेंगे। दुश्मन बढ़ेंगे तो दुश्मनी को डील करने और किसी भी इकोनॉमी में देखिए क्या होता है ना, जब आप राइज करते तो आपको बहुत लोग पीछे करने के लिए आते हैं। अमेरिका ने That's देखा praise also. कि हाँ आपको सैंक्शन डाल दिए 50%। इससे वर्स्ट और क्या हो सकता है कि टैरिफ लगा दिया 50% का इंडिया जैसी कंट्री पे। एक डेमोक्रेसी ने दूसरी डेमोक्रेसी को हराने की कोशिश की, ये हिस्ट्री में कभी नहीं होता है। और इसके बावजूद भी इंडिया नहीं रुका, ना इंडिया का ग्रोथ रुका। तो अगर ये शिफ्ट नहीं हुआ डिफेंस में और ये फंड्स नहीं गए, आपने देखा होगा कि नहीं पता नहीं, इस बार 26 जनवरी को जो परेड हुई, इसमें देखो आप सब मेक इन इंडिया के मिसाइल्स बन दिख रहे थे। आप मेक इन इंडिया की व्हीकल्स आपको देखने को मिल रही थी, मेक इन इंडिया के हेलीकॉप्टर्स देखने को मिल रहे थे। तो अब इंडिया जो है वो हो सकता है टेक्नोलॉजी टाई अप करे रशिया से या फ्रांस से, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग क्लियरली फोकस है वो इंडिया में करना चाहता है, इसीलिए बजट दिया। इनफैक्ट आने वाले समय में हम सप्लाई करेंगे डिफेंस बाकी की कंट्रीज को, तो 190 कंट्रीज आपके साथ काम करना चाहेगी आगे चल के। तो इसको बोलते हैं लीडरशिप। लीडरशिप इज नॉट जस्ट बाय जीडीपी नंबर, it has to be reflected in your army and your overall capabilities, and therefore this government is very clear that they would not tolerate anything coming from Pakistan or maybe neighbor countries, and they would retaliate, not only retaliate but they would give their answer in their language. So clearly, and they are empowered enough। पहले क्या होता था, कोई भी गोली चलाने के पहले उनको दिल्ली से हेडक्वार्टर से अप्रूवल लेना पड़ता था आतंकवादी को मारने के लिए। अभी ऐसा कुछ नहीं है, आर्मी को एम्पावर्ड कर दिया गया है, उन्हें अच्छे से अच्छे राइफल्स AK-47 इस पे स्पेंड किया कि आपको जो डिसीजन लेना है लो, बट आपको कंट्री सेफ रखनी है। एट द सेम टाइम आपने देखा होगा काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, ऊपर लद्दाख के पास में डायरेक्ट कॉरिडोर बन रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे 3 घंटे में आप लद्दाख से चंडीगढ़ आ सकते हैं। इस तरह के रोड बन रहे हैं जो कभी सोचा भी नहीं था किसी ने। सो द इंडियन इनफैक्ट कॉरिडोर एक बन रहा है कि चेन्नई से जम्मू पहुंचना है तो कितने फास्ट आप ट्रेन से सामान लेके पहुंच सकते हैं। ऐसे साइड में कोस्टल लाइंस बन रही है। द इंडियन रेलवे कैपेक्स स्पेंडिंग हैज रेज टू 2.8 लाख करोड़, जो कि 10% बढ़ा दी गई है उन्होंने।
अभी इसमें क्या था कि आप देखेंगे बिफोर दिस एनडीए गवर्नमेंट टुक ओवर, आई एम नॉट सेइंग दैट एनडीए गवर्नमेंट इज डूइंग गुड और कांग्रेस वाज डूइंग बैड, नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इस तरह का रेलवे में कैपेक्स देखने को मिला ही नहीं था पहले, जो इस तरह का कैपेक्स अभी देखने को मिल रहा है। तो ये कॉरिडोर बन रहे हैं, उसकी वजह से क्लियरली फोकस है सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। अब इसमें की टेक अवेज क्या है कि भाई हायर पब्लिक कैपेक्स शुड सपोर्ट द ग्रोथ, जैसा मैंने बोला आपको, भाई 10, 11, 12 लाख करोड़ अगर आप कैपेक्स लेते हो, खर्चा करते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, रोड्स बनाते हो, पर डे 5 से 6 किलोमीटर का रोड बन रहा है इंडिया में, तो इस तरह का अगर आप करते हो तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, ग्रोथ भी होगा, जीडीपी भी बढ़ेगा, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड मेजर मेट्रोज में फोकस आएगा। ये तो पहले क्या था, सिर्फ मेट्रोज में ही फोकस था। दूसरा क्या है, फास्टर रेल लिंक्स मैंने आपको बताया, इट विल इंप्रूव वाटरवेज, कैन रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स इन टायर 2 cities and making these locations far more attractive for factories, warehousing, service hubs। जैसे मैंने आपको बताया, नागपुर का एक एग्जांपल दिया कि नागपुर में काफी सेंट्रली लोकेटेड है तो काम हो रहा है, भोपाल एक अनदर सिटी है, इंदौर एक है, इस तरह की टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में, रायपुर में काफी काम हो रहा है। थीम्स आर क्लियर, तो मैंने आपको पहले ही बोला, वंस अगेन फोकस रहेगा मैन्युफैक्चरिंग, एसएमईज एंड एम्प्लॉयमेंट्स। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स को काफी बढ़ावा दिया है। सो 2026 में हमारा ये सोचना है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में आप देखेंगे इंडिया कहीं भी नहीं था, मतलब सारी सारी टीवीज देख लो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक के मोबाइल्स सब हम लोग इंपोर्ट करते थे एक समय पे, कुछ भी हम लोग नहीं बनाते थे, या चाइना से लाए, अपना ब्रांड नेम डाले, आगे भेज दिए। पर अभी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आपको पता होगा एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग जो मेक इन इंडिया हो रही है, जो हाईएस्ट है वर्ल्ड। तो इसी तरह से पहली बार इंडिया सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम बनाया है। अभी सेमीकंडक्टर आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, वो चिप। तो हम लोग क्या होता था, वी वर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, नाउ द अदर कंट्री विल गेट डिपेंडेंट ऑन यू। हम उनका सप्लाई रोक सकते हैं, हालांकि इंडिया ऐसा कभी करेगा नहीं। हमने कोविड के टाइम पे सबको वैक्सीन भिजवाई थी फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू नो वी डोंट कम फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट, बट स्टिल द लॉन्च ऑफ सेमीकंडक्टर 2.0 का जो इनका जो टारगेट रखा है, विच इज डबलिंग द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम outlay to 40,000 crores. मतलब it is basically indicating that government is focusing on improving India's electronic and manufacturing as well as semiconductor value chain। ये तीनों है ना, एक ही गाड़ी के 3 पहिए हैं, आप समझ जाओ, like 3 wheeler, you know, and without ये सेमीकंडक्टर ना, ये कुछ होना नहीं है इसमें। ये सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी इस पे चाइना और बाकी की कंट्रीज पे थी, वो यहाँ से हटने वाली है। ऑलरेडी आपको पता है सेमीकंडक्टर के प्लांट्स लग गए, गुजरात में लग गए, बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स लाइक टाटा इज इन्वॉल्व देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट 10,000 करोड़ का कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम डाला है, जिसमें डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स इन मिनरल रिच स्टेट। अभी क्या हो रहा है ना, ये यूएस चाइना, देखिए चाइना यूएस को धमकी दिया है कि उन्होंने वार्न किया है कि हम आपको रेयर अर्थ नहीं देंगे, तो उनको यूएस को पता है कि भाई सबसे ज्यादा रेयर अर्थ चाइना के पास, तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी है, तो दे कांट डू मच अबाउट इट। बट इंडिया के पास में है रेयर अर्थ, पर उसका पहली बात ठीक से उसका काम नहीं हुआ है, मतलब आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है उसका, और हुआ भी है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग उसका कॉरिडोर नहीं बना। तो अभी इसका एक कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम उन्होंने लॉन्च, जिसके लिए 10,000 करोड़ की। टेक्सटाइल पे क्लियरली फोकस है। टेक्सटाइल पे आपको पता नहीं कि पता है, बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्री 40% टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करती है, और हमारा जो है उस पे शेयर 10% है वर्ल्ड। तो इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर gets a structural push this time in budget 26-27. So what they have done, they have rolled out of mega textile parks, मतलब एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल का पार्क, पॉलिसी सपोर्ट देंगे उनको, सारे उनके की इनिशिएटिव को नैरो डाउन करके, जो भी उसमें गैप आ रहे कॉम्पिटिटिवनेस में, कि भाई क्वालिटी में गैप आ रहा है, कॉटन के क्वालिटी में गैप आ रहा है, वो सारे क्लियर करके, एंड फोकस है कि वियतनाम और बांग्लादेश का मार्केट शेयर जो है वो कम करना है और अपना बढ़ाना है।
एंड दिस अलोंग विथ इंडियाज EU ट्रेड। अभी आपको पता है रिसेंटली जो ये मदर ऑफ ऑल डील जिसको बोलते हैं ट्रेड पर, और वहां Yeah. पे कंसर्न है, वहां कंसर्न ये है कि इंडिया एक्सपोर्ट तो कर देगा बट क्वालिटी मेंटेन नहीं करेगा। Mm. European countries don't compromise with quality. They are Yeah. very quality conscious. Yeah. Indians are value conscious, but these guys are quality conscious. इंडिया में कंप्लेन आ जाएगा, क्वालिटी होगा, डिस्काउंट करेगा, नेगोशिएट करेगा। वहां पे ये सब नहीं है, वहां पे Exactly. क्वालिटी। So that is another thing. So that Indian exporter has to kind of learn this, and I'm sure they will do it better. टैक्स हॉलीडेज टिल 2000, ये बहुत बड़ी बात है। पहले क्या 10 साल तक गिफ्ट सिटी में आप कंपनी लिस्ट करते हैं, बाहर की कंपनी आती है गुजरात, आपको पता है गिफ्ट सिटी जो हमारे यहाँ, तो 10 साल तक उनसे हम नहीं ले रहे थे पैसा। अब वो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई उसको 2047 तक हम आपसे कोई टैक्स नहीं देंगे, आप आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो। तो ग्लोबल क्लाउड सर्विस बन गई, उसमें डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। आपको पता है गूगल बहुत बड़ा डेटा सेंटर साउथ में ओपन कर रहे हैं वो। तो हमने इंडिया को उसको मेजर बूस्ट मिलेगा, उससे जॉब बनेगी, तो डेटा सेंटर इकोसिस्टम बनेगा। तो 2047 तक इनको बोलो भाई कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स हॉलीडे, जब तक भारत विकसित नहीं हो जाता 2047, आजादी के 100 साल बाद तक। फिर उसके बाद में उन्होंने अनाउंस किया कि चैंपियन ऑफ एसएमईज की भाई इनके लिए 10,000 करोड़ का अलग से फंड क्रिएट किया है, और जो उसमें स्केलेबल बिजनेस है गवर्नमेंट को दिखाएगा, गवर्नमेंट उसे फंड करेगा। सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स देयर इज अ क्लियर कट शिफ्ट टुवर्ड्स डीपनिंग द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड सप्लाई चेन, which basically helps Indian economy to showcase their resilience. And domestic production of semiconductor equipments, containers, rare earth component, it can all help you to basically lower down your imports and dependency for your electronics requirement, your electrical vehicle requirements, your infrastructure project. तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेस है ये। अच्छा, व्हाट मार्केट्स डिड नॉट लाइक, हम लोगों को क्या पसंद नहीं आया? हम लोग को ये पसंद नहीं आया कि भाई हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्री में फ्यूचर्स में उनका 0.02 था ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उसको 0.05 कर दिया सडनली। अभी मार्केट उस सिचुएशन में नहीं था, मार्केट पिछले 2 साल से खराब चल रहा है, और मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग सम गुड न्यूज, और मार्केट्स गॉट नेगेटिव न्यूज। इसलिए आपने देखा कल मार्केट जो है खटाखट 1000 पॉइंट नीचे आ गया था मोटा मोटी। एंड ऑप्शन प्रीमियम में भी इजाफा किया 0.01 से 0.015। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड दे आर मिसगाइडेड बाय लॉट ऑफ पीपल एंड सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, ये उसने डिस्करेज करना है कि भाई डेरिवेटिव का आप ज्यादा यूज ना करें, लॉन्ग टर्म में आओ इंडिया में। इंडिया का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर स्टोरी है, उसमें जो पैसा बनाना है बनाओ, बट इस तरह का ट्रेडिंग में आप लॉस भी होता है इन्वेस्टर का। और हालांकि गवर्नमेंट को इससे क्या, गवर्नमेंट को सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए इससे मिलेगा टोटल, तो 500 लाख करोड़ का मार्केट कैप, उसमें आप ट्रेडिंग वॉल्यूम निकालेंगे तो 25,000 करोड़ का ही इजाफा होगा गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट का वो नहीं, गवर्नमेंट को डिस्करेज करना है। गवर्नमेंट चाहते तो 25,000 करोड़ रुपए कहीं और ड्यूटी डाल देते। दूसरा क्या था कि भाई इनको STCG LTCG ये सब में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई कहीं ना कुछ बेनिफिट मिले, पर इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट काउंटर व्यू इज दैट F&O डीलर फील्स द पिंच, दिस कुड मूव टू एनकरेज अ शिफ्ट टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड। तो बोले आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करो, AIF के थ्रू करो, PMS के थ्रू करो, जिसमें आपके चांसेस ऑफ लूजिंग मनी इज नेग्लिजिबल। जैसे हम भी अपने पोर्टफोलियो लेवल पे देखते हैं, जितने पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव नहीं है पिछले 2 साल में। अगर हम देखते हैं मे बी दे आर एट द सेम लेवल, आई एम नॉट सेइंग कि दे हैव डन बेटर, बट अगर ये खुद मैनेज करते तो हो सकता है लॉस हो सकता था। तो वो उनका कहना है कि एक प्रोफेशनल सेटअप के थ्रू आप काम करिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का सहारा लीजिए, एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की तरह रहे आप, एक फोकस रहे आप, अपनी खुद की रिसर्च कैपेबिलिटी ले, लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी को पैसा दे, शॉर्ट टर्म में ना जाए, उस पे आप मार्केट गिर रहा है और शॉर्ट्स मत क्रिएट करो आप। तो इसमें क्या होता है, मार्केट फिर बहुत वोलेटाइल होता है, तो इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है कि वोलेटिलिटी कम होगी इससे। तो फिस्कल पाथ रिमेन डिसिप्लिन फॉर लॉन्गर टर्म
In fact, FY27 fiscal deficit is pegged at 4.3%, and our debt to GDP is estimated at about 55%, with the target to bring down to 50% by 2031. तो दिस सिग्निफाइज द मैक्रो स्टेबिलिटी। ये गवर्नमेंट बोलता है भाई मैं अपने बच्चों को उधारी लेके नहीं जाऊं, इन द सेंस दैट दे डोंट वांट टू हैव, लाइक आप अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो देख लो, आपको ऑलमोस्ट 1.5-2 टाइम्स का फर्क मिलेगा, मतलब 1.5 टाइम्स। यहाँ पे उल्टा है, 0.5 है, मतलब कि आधा है, 50% है। और वहां पे वो लेवरेज्ड है इकोनॉमी। चाइना का भी देख लो। हम बोल रहे भाई, हम ज्यादा, गवर्नमेंट बोल रहे भाई हम उधारी लेके बच्चों को नहीं देंगे, हमारा सारा खर्चा भी कर ले जैसे अमेरिका ने किया, और बाद में नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी उसको परेशानी हो। इसीलिए तो टैरिफ, ट्रम्प जी क्या कर रहे हैं, ट्रम्प यही टैरिफ लगा रहे हैं कि उनको मालूम है कि भाई डेट सर्व करने की कैपेबिलिटी नहीं है हमारी, और पुरानी गवर्नमेंट ने बहुत डेट लेके रखा हुआ है, ओवर लिवरेज्ड है इकोनॉमी, खूब इंपोर्ट किया, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी, कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया, तो इसके वजह से इकोनॉमी आज तकलीफ में है। तकलीफ में, तो अभी ही हैज टू सेव, तो व्हाट ही इज डूइंग इज पुटिंग टैरिफ सैंक्शंस एक्सेट्रा ऑन वेरियस कंट्री। सो हायर बोरोइंग इससे होगा। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग इज एस्टिमेटेड एट अबाउट 17 लाख करोड़, which would push 10-year G-Sec yield upward। ये होना है, yield बढ़ेगा और रेट देंगे। This investment numbers assume 80,000 crore by FY27 versus 35,000 crores in FY26। तो दिस इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, जिससे गवर्नमेंट को फंड्स आएंगे, उससे वापस से कैपेक्स में वो खर्चा करेंगे और फिर से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक न्यू नेगेटिव पॉइंट ये रहा कि ये इन्होंने जो 0.2 से 0.5 कर दिया, बट इसके अलावा ओवरऑल जो है ये रिफॉर्म की तरफ में है, विकसित भारत की तरफ में बजट प्रेजेंट किया 2047 का ये एजेंडा है, और उसमें ये एक कदम इन्होंने आगे बढ़ाया है। अब दूसरा डिसअपॉइंटमेंट एक मेजर और भी था देवांशु जी की, मिडिल क्लास काफी एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई अब मिडिल क्लास को 12,75,000 तक का टैक्स का ऑलरेडी रिबेट दिया हुआ है। अभी उसमें से 60% लोग आप देखेंगे, 65% लोग, उनका आधे 6 लाख 7 लाख तक का भी नहीं जा रहा है पैकेज। वहां का टैक्सेशन का इशू आ ही नहीं रहा है, तो इससे ज्यादा और क्या एड्रेस होगा? मतलब कैन यू इमेजिन कि भाई 12,75,000 तक आपको कुछ नहीं देता, मैक्सिमम अभी वहीं पे ही है जनता। तो जब तक कि गवर्नमेंट को दिखेगा नहीं कि ओवर यूटिलाइज हो रहा है, और ये यहाँ ओवर यूटिलाइज मतलब ये क्लोजर टू लिमिट आ रहा है, तब तक वो नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकता। कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, मिडिल क्लास का कम कर दिया, लोअर क्लास को तो कोई टैक्स देना ही नहीं है। इनफैक्ट सब्सिडरी है, योजनाएं हैं, ये सब फ्रीबीज दे ही रहे हैं। सबको, महिलाओं को 5,000 6,000 1000 2,000 लाडकी बहन वगैरह ये सारी योजना चालू है। अब उन्हें जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि जो 1%, 2%, 3% पीपल हुआ सक्सेसफुल इन इंडिया, उनके लिए कोई राहत आई है क्या? तो वो अभी तक देखने को नहीं मिली है। और इनफैक्ट जो बाईबैक है उसको लेके उन्होंने थोड़ा सा इशारा दिया है कि भाई बाईबैक में पहले कैपिटल गेन का क्लैरिटी नहीं थी, उन्होंने दे दिए, 2 साल पहले उन्होंने चेंज की थी, वो एक उन्होंने दे दिए। तो मेरे हिसाब से क्लियरली ये जो बजट है, ये बजट वैसा बजट नहीं है, पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, रिफॉर्म की तरफ है बजट। विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय रिमार्क्स हियर। देवांशु जी, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन। Thank you, Vikas sir, for giving a lot of insights about budget. So if anybody has any question, they can ask, or else we will wind up this. You can conclude this. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, Vikas sir, for giving a valuable time. If anybody has any question, they can reach out at us at altportfunds.com. Thank you, everyone. Bye.